So let's start with the class. Let me open the Excel sheet. देखें balance sheet and what was the other thing? Balance sheet and we can say of income statement. That's very much easier. कोई भी problem नहीं है. That is very much simple. ठीक है? I will explain you today again. Then you can remember the key points. क्योंकि देखें key points if they are missed out, then you cannot do anything. If you miss key points, ठीक है? अच्छा, मेकिंग अ फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट. देखिए इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट विल बी, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इब्राहिम, ठीक है, एंड वी हैव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड इट्स 31st December, but it does not mean कि every time the year will end at 31st December. ठीक है, हो सकता है the year can end before 31st December, 31st November को year end हो, और it can end after that too. ठीक है, I think you people cannot see this. Now you can see this. ठीक है, okay. I hope this is the format which we have done so far. Now the $3 below it. सर ये $3 क्या होते हैं? This is something confusing for every other student. देखें ये $3 is it's only for presentation, nothing else. Only for presentation part, so that the last final answer would be coming in the last column. Final answer जो होगा last column में आएगा. क्यों? The reason is that because that final answer will be used afterwards. Less sales return. अच्छा, if we deduct sales return तो क्या हो जाएगा? We will get the actual sales. ठीक है, हमारे पास sales थी, sales के बाद we deducted sales return from sales, so we got the actual sales which has happened in our business. तो उस actual sales होने की वजह से we will get to know that how much ग्रॉस प्रॉफिट. no not gross profit, how much sales is actual. ठीक है, let's suppose हमने 2,50,000 के लैपटॉप सेल किए थे ऑन क्रेडिट एंड ऑन कैश, दोनों मिला के 2,50,000 के थे. उसमें से 30,000 वैल्यू आ जाएगी. यस, वेरी गुड. जो 30,000 लैपटॉप्स थे वो रिटर्न हो गए थे हमें, तो 2,50,000 माइनस 30,000, तो वी कैन से वी हैव 2,20,000 वर्थ ऑफ लैपटॉप्स विच आर द सेल्स, विच आर द एक्चुअल सेल्स ऑफ अस. सर ये फिगर क्या कहलाती है? ये फिगर दिस इज कॉल्ड नेट सेल्स. ठीक है, सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग सर ये कौन सी फिगर है? दिस इज नेट सेल्स. ओपनिंग इन्वेंट्री, द इन्वेंट्री विच इज प्रेजेंट विथ यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर. पिछले साल की एंडिंग इस साल की ओपनिंग होगी. ठीक है, देन वी हैव एड परचेजेस. सर आपको ये पूरा फॉर्मेट याद है? इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमेंबर दिस फॉर्मेट. ठीक है, सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग दिस, तो उसका मैं सिंपल हल आपको बताता हूँ. सिंपल एज दैट. As many questions as you practice, it will be easier for you to learn this. क्योंकि देखें, being a teacher, obviously I have been teaching this for more than 5 to 6 years. तो ये obvious सी बात है, हर क्लास में every year I do these type of questions a lot on board, on Excel, everywhere, on tuitions, everywhere. ठीक है, so I have remembered this, and as a student obviously I have some practice. I have practiced these things in my O levels and in my A levels, so I have practiced a lot. After that I have achieved perfection. ठीक है, so don't compare yourself with me कि सर को याद हो जाता है मुझे नहीं होता. Don't you worry about that. ठीक है, inshallah we will remember it, but we need practice for that. Less purchase returns, sorry, the sequences are out. This purchase return is over here, and यहाँ पे we have add कैरेज इनवर्ड्स वो होते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. वेरी गुड. ठीक है, नाउ वी विल गेट अ टोटल ओवर हियर, जहाँ पे एक टोटल आ जाएगा ऑफ दीज वैल्यूज. यहाँ पे वी विल एड ओपनिंग इन्वेंटरी टू परचेजेस, लेस परचेज रिटर्न, देन वी विल एड कैरेज इनवर्ड्स. तो ये टोटल आ जाएगा. अच्छा, सम स्टूडेंट्स स्टार्टेड थिंकिंग सर ये हम लोग ऐड क्यों कर रहे हैं परचेजेस, ये तो माइनस होनी चाहिए थी. तो हम पहले पूरे माइनस करने वाली फिगर का टोटल कर रहे हैं, देन वी विल डिडक्ट द टोटल फिगर फ्रॉम दिस सेल्स. ठीक है, एक बार मैं कर लेता हूं, दोबारा आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट. क्लोजिंग इन्वेंट्री,
closing inventory, the inventory which is there at the end of the year, the inventory which is unsold, जो इन्वेंट्री अभी तक बची हुई है। अच्छा, ये ओपनिंग इन्वेंट्री जो हमारे पास पड़ी थी उसमें हमने परचेजेस को ऐड कर दिया। जो पिछले साल की इन्वेंट्री थी इसमें हमने इस साल की इन्वेंट्री जो हमने परचेज की, जो भी रॉ मटेरियल था वो ऐड कर दिया। लेस परचेज रिटर्न जो कि वापस कर दी थी वो लेस करना जरूरी था। यहाँ पे आई हैव टू पुट ब्रैकेट्स, ठीक है। सो ऑब्वियसली बिकॉज इट इज इन माइनस, जब भी माइनस होगा अकाउंट्स में ब्रैकेट्स आर वेरी मच नेसेसरी। ये प्लस होगा, क्या होगा देखिए, ऐड परचेजेस, इसमें ऐड हो गए परचेजेस। लेस परचेज रिटर्न जो कि गुड्स वापस कर दिया, दे आर नॉट पार्ट ऑफ आवर इन्वेंट्री। ऐड कैरेज इनवर्ट्स, ये कैरेज इनवर्ट्स ऐड क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ये कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट हो रही है, तो ये कैरेज इनवर्ट्स हमारी कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग एडेड ओवर हियर। कैरेज इनवर्ट्स, those transportation costs, those transportation charges which are borne by the borne by the purchasing business in order to bring the goods at its warehouse, ठीक है। एक exaggerate करके थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ आपको क्लास में। we have purchased some goods from शहीर, ठीक है। अब शहीर is a businessman, शहीर is a supplier, we have bargained a lot, हमने इतनी बार्गेनिंग कर दी। अब शहीर is saying कि सर अब इससे ज्यादा we cannot go beyond the rates, अब finally these are the rates for you because you are buying in bulk quantity। अब शहीर is asking me, शहीर is saying कि सर हमने जितने भी गुड्स आपने मुझसे परचेज किया, मुझे इतना ज्यादा प्रॉफिट, तो आई एम नॉट गेटिंग अ गुड प्रॉफिट ऑन दीज गुड्स, सो यू हैव टू टेक दीज गुड्स ऑन योर ओन टू होम, ठीक है। अब आपको खुद लेके जाने ये सारे गुड्स, तो व्हेन यू हैव टू टेक दीज गुड्स ऑन योर ओन, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब मैं अपने गुड्स खुद ही ले जाऊंगा तो क्या होगा, कैरेज इनवर्ट्स आएगी जो कि मेरी कॉस्ट में इंक्रीज लाएगी, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग एडेड ओवर हियर, ठीक है। अब ये प्लस माइनस होके दिस विल बी द आंसर ओवर हियर, ठीक है। लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, सर क्लोजिंग इन्वेंट्री क्यों लेस कर दी, क्लोजिंग इन्वेंट्री इसलिए लेस कर दी, द रीजन इज दैट बिकॉज इफ वी डिडक्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसका मतलब है वो गुड्स की कॉस्ट आ जाएगी जो एक्चुअल में सेल हुए, ऐसा ही है ना। जो गुड्स हमारे पास सेल नहीं हो वो तो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, जो सेल हो गए वो हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि हमने प्लस माइनस करके सारे गुड्स इंक्लूड कर दिए थे, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज सब ऐड कर दिया। अब माइनस वो कर दिया जो कि अभी भी रिमेनिंग है, those goods which have not been sold so far, we deducted that is called less closing inventory। We got a final answer over here जहां पे we will put brackets on this and we will get to know about the cost of sales का अमाउंट ये आ गया बिल्कुल लास्ट कॉलम में। नेट सेल्स, दिस इज कॉल्ड नेट सेल्स, ये फिगर नेट सेल्स की होगी, माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, we will get a figure for gross profit। I hope it is understood, ठीक है। so far it will be clear to you people। यहाँ मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट यू कैन नो कि ये अंडरलाइनिंग के बाद यहाँ पे भी इट्स नेसेसरी टू अंडरलाइन, एक लाइन लगती है, ठीक है। यहाँ पे भी इट्स नेसेसरी टू अंडरलाइनिंग दिस, ठीक है। आई होप ये थोड़ा सा सिमिलर हो जाएगा आपके लिए जर्नल से कंपैरिजन करने में व्हेन वी डिड इट ऑन दी बोर्ड। एड अदर इनकम, अदर इनकम क्यों कहते हैं सर इसको, अदर इनकम इसलिए कहते हैं कि देखिए ये बिजनेस के ऑपरेशन से हटके है। बिजनेस के ऑपरेशंस ये नहीं है कि हमने डिस्काउंट रिसीव करके अपना प्रॉफिट करना है। बिजनेस के ऑपरेशंस क्या है कि वी हैव टू मैन्युफैक्चर समथिंग एंड वी हैव टू सेल दैट, ठीक है। तो जब सेल होगा, तो जब सेल होगा कोई भी गुड, तो व्हाट विल हैपन, वी विल गेट द प्रॉफिट। ये बिजनेस के मेन ऑपरेशंस है। मेन ऑपरेशंस से के अलावा कुछ भी इनकम होगी दैट विल बी टर्म्ड एज अदर इनकम, ठीक है। और देयर आर थ्री आइटम्स जो कि नॉर्मली यू कैन सी इन द अदर इनकम। डिस्काउंट रिसीव आएगा, जो भी आपने डिस्काउंट लिया ऑन द परचेजेस, इट विल कम ओवर हियर। Decrease in provision for doubtful debts, we completed this topic together। provision for doubtful debts का मतलब है we have a doubt on our debtors, on our customers कि they will not pay us। जब वो doubt decrease होगा तो it is a benefit for the business, तो हम उसको ऐड करेंगे एड अदर इनकम में। थर्ड इज, हम डेप्रिसिएशन का टॉपिक स्टार्ट तो कर चुके हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट फिनिश दैट टॉपिक क्योंकि वो थोड़ा लेंदी है। तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट का मतलब है जो भी प्रॉफिट वी हैव अर्न ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, मतलब जो भी प्रॉफिट वी हैव अर्न ऑन सेलिंग दैट एसेट। वी विल नेवर एवर रिकॉर्ड द सेल ऑफ एसेट। सेल ऑफ एसेट का वर्ड यूज नहीं होता, वी विल ऑलवेज रिकॉर्ड डिस्पोजल, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, डिस्पोजल का टर्म यूज होता है इसके साथ।
सेल्स का टर्म यूज नहीं होता फॉर नॉन करंट एसेट। जी जी मुझे सिर्फ ये पूछना था, हमने जो जर्नल में करे थे क्वेश्चंस फर्स्ट टर्म में करे थे, उनमें सही हमने है। 2 कॉलम यूज करे थे, यहाँ आपने 3 कर लिए। जर्नल्स के कंफ्यूजिंग अंदर हो 2 गया कॉलम थोड़ा। नहीं, देयर वर 3 कॉलम्स ना, इफ यू कुड करेक्ट मी, एनीवन सर कैन। यूज हुआ ही 2 है, तीसरा पूरा खाली रहता और यहाँ कैसे आ गए? अच्छा दिस कंफ्यूजिंग इज, हो गया बहुत। उसका रीजन देखें, उसका रीजन है कि क्वेश्चंस थे ना, क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली चले गए थे। ठीक है, कंफ्यूजन इसलिए हो रही है कि क्वेश्चन में देखें ओपनिंग इन्वेंट्री था आपके पास, बल्कि सॉरी, देयर वाज नो ओपनिंग इन्वेंट्री, देयर वाज नो परचेज रिटर्न, देयर वाज नो कैरेज इन्वेंट्री। हमारे पास परचेजेस थी और हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, तो यहाँ आके यहाँ जाने का फायदा नहीं था ना, हम डायरेक्टली सेकंड में आ गए थे, फिर इसको ये स्टेप करके हम वापस चले गए। फुल फ्लैश डिटेल्स होंगी तो वी विल गो फॉर दिस फॉर्मेट, डोंट बी कंफ्यूज्ड। ठीक है। सर वो ये होता था कि अगर कोई पेमेंट जिसका आगे प्लस हम्म। माइनस नहीं होना होता था वो पहले उसमें आती है, और जिसका माइनस होना होता था वो दूसरे कॉलम में आती थी, और जो फाइनल आंसर होता था ना वो तीसरे कॉलम में। तीसरे में आता था, बिल्कुल ऐसा ही है। इफ द डिटेल्स आर मिसिंग तो वी विल नॉट यूज द फर्स्ट कॉलम। जब डिटेल्स ही शॉर्ट है तो हम व्हाई वी वुड वेस्ट आवर टाइम यूजिंग फर्स्ट कॉलम, डिटेल्स ही नहीं है उस फर्स्ट कॉलम की। ठीक है, सो डिस्काउंट अलाउड हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, बैड डेट्स हो गया, व्हेन योर डेटर्स कैन नॉट पे यू, वो भी एक एक्सपेंस है आपके लिए। ठीक है, नो 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 शहीर, कैरेज आउटवर्ड इट्स नॉट अदर इनकम। कैरेज आउटवर्ड्स, अभी मैं, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, इट्स एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। क्यों? क्योंकि अगर हमारा कस्टमर कहता है कि हमें ये गुड्स मेरे वेयर हाउस पे, वी नीड दिस गुड्स एंड यू हैव टू डिलीवर दिस गुड्स, तो कैरेज किसका लगा? मेरा लगा ना, सेलिंग बिजनेस का। तो कैरेज आउटवर्ड इज एन एक्सपेंस फॉर यू। इसमें मार्केटिंग एक्सपेंस आ जाता है, वेजेस एंड सैलरीज है, टेलीफोन एक्सपेंस यू कैन सी इन योर आंसर्स, इन योर क्वेश्चंस। उसके अलावा वी कैन से सनड्राई एक्सपेंस, वी कैन से मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके अलावा वी कैन से इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जब डाउट विल इंक्रीज ऑन आवर डेटर्स कि दे विल नॉट पे अस, हमारे कस्टमर्स पे डाउट इंक्रीज होगा, तो दैट्स अ लॉस फॉर द बिजनेस। क्यों? क्योंकि जब डाउट इंक्रीज हो गया, when the doubt has increased, so what will happen? Now the customers will be paying us less. When the customers are about to pay us less, so what will happen? We cannot receive all amount. तो जब all amount receive नहीं होगा तो it is a loss for the business. सही है? This way we will get an answer. This is net profit. I hope it is clear now. Questions from this? Any questions from this? ये मैंने आपके लिए आपके सामने बनाया, ठीक है? Your name, not Ibrahim's name, obviously this is an example. I hope everyone would have understood it कि ये example थी, ठीक है? तो example में I have written Ibrahim because I did not have any name. इब्राहिम का नाम लिख दिया, ठीक है? If you have a name in the question, जो कि most probably होगा आपके पास name in the question, so you have to write the name of the person who owns the business. Income statement हमेशा सर for the अभी year ended होती है। जी 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 बोले। ओके, इनकम स्टेटमेंट हमेशा फॉर द ईयर एंडेड होती है। क्यों? क्योंकि इट्स फॉर द होल ईयर, एवरीथिंग व्हिच हैज हैपेंड विद इन द ईयर, ये सब चीजें आपके पास उसी की आती है। ओपनिंग इन्वेंट्री हमेशा ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होगी। हमेशा ट्रायल बैलेंस की लिस्ट होती है ना, कैपिटल, परचेजेस, सेल्स, जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हैं उस लिस्ट के अंदर आपको नजर आएगी ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, आइदर द डेट विल बी मेंशन्ड or it will be written clearly opening stock, opening inventory over there. Closing inventory will always be there after the trial balance has ended. आपको हमेशा एंड पे नजर आएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, अब हम इब्राहिम की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बना लेते हैं, क्योंकि बिकॉज आई यूज्ड वन नेम सो फार, तो हम उसी नाम के हिसाब से आगे भी करते जाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31st December 2020। ठीक है, सो वी डू हैव, इसमें तो आई होप यू वोंट डिसएग्री, इसमें वी हैव 3 कॉलम्स। ठीक है, फर्स्ट कॉलम इज ऑफ कॉस्ट। सर ये बैलेंस शीट है ना? ये बैलेंस शीट है।
second column is of depreciation, third column is of net book value. ठीक है, net book value, the value which is of the asset in our eyes. मेरी नजर में उस asset की क्या value है? Yes, Shahir, very good question raised. Shahir is asking whether income statement is statement of profit and loss. Yes, income statement is statement of profit and loss. ये उसका नया नाम है, ठीक है. बुक्स के अंदर भी यूज हुआ होगा काफी बार. अब नाउ आई एम राइटिंग डाउन नॉन करंट एसेट, जिसके अंदर मशीनरी है, जिसके अंदर मशीनरी है, वैन्स हैं, जिसके अंदर मोटर व्हीकल हो सकती है, ठीक है. अब उसकी कॉस्ट होगी यहाँ पे 3 कॉलम्स, द कॉस्ट विल बी हियर. डेप्रिसिएशन सो फार टर्म 1 में करवाई नहीं थी, टर्म 2 में भी वी हैव नॉट स्टार्टेड अप्रोप्रिएटली, तो डेप्रिसिएशन विल नॉट बी देयर, ठीक है. सो डायरेक्टली नेट बुक वैल्यू होगी आपके पास, ठीक है. सर डेप्रिसिएशन क्या है, कैसे होती है, किस तरह है, वी विल लर्न इट इन टर्म 2, जो कि चैप्टर आजकल हमारा क्लास में चल रहा है. दोज हु आर अटेंडिंग दे वुड नो दिस थिंग बेटर, ठीक है. इन्वेंट्री सर तो अगर डेप्रिसिएशन के बगैर कर सकते हैं तो डेप्रिसिएशन का फिर काम ही किया. देखें, डेप्रिसिएशन के बगैर इसलिए नहीं कर रहे कि डेप्रिसिएशन है नहीं. डेप्रिसिएशन इज अ कॉन्सेप्ट बिकॉज द सिलेबस हैज बीन डिवाइडेड इन सच अ वे कि टेंस में वी डोंट टीच डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट्स पक्के नहीं हुए होते ना, बहुत सारा सिलेबस हो जाएगा इफ यू गो टिल डेप्रिसिएशन, ठीक है. सो वी हैव डिवाइडेड द सिलेबस. डेप्रिसिएशन प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट तो है ना, वी नो दिस थिंग. अच्छा, सिंपल आइटम्स आर देयर, कैश एट बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, योर कस्टमर, इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी हमेशा यहाँ पे, जो कि ट्रायल बैलेंस के एंड पे गिवन होगी. कैश इन हैंड विल बी द कैश व्हिच इज इन योर हैंड्स. अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, व्हेनेवर यू आर लर्निंग दिस कैटेगरीज, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, द सीक्वेंस शुड बी द सेम. ये सीक्वेंस इस सीक्वेंस में बना हुआ है कि द लीस्ट लिक्विड इज एट द टॉप, उससे कम लिक्विड सेकंड नंबर, थर्ड लीस्ट लिक्विड थर्ड नंबर, एंड फोर्थ इज द मोस्ट लिक्विड एसेट. लिक्विड का क्या मतलब? दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली. इन्वेंट्री को कन्वर्ट करने में काफी टाइम लग जाता है. द रीजन इज दैट कि इन्वेंट्री पहले प्रोडक्शन में जाएगी, प्रोडक्शन के बाद सेल होगी, देन द कस्टमर्स माइट पे इट ऑन कैश और मे पे इट ऑन क्रेडिट, तो उसमें काफी टाइम लगता है. उससे कम टाइम अकाउंट रिसीवेबल से पैसे लेने में लगता है, उससे कम टाइम बैंक से अपने पैसे विड्रॉ करने में लगता है, एंड द लोएस्ट टाइम व्हिच इज कंज्यूम्ड इज इन कैश इन हैंड, जो कि रेडिली अवेलेबल होता है आपके हाथ में, तो उसमें तो शायद आई डोंट थिंक ज्यादा टाइम आपको लगता होगा, ठीक है. अच्छा, these are the totals. These are total assets. If you want to write, you can write it down, ठीक है. Then we have another section. इसको मैं close कर दूं. If I am underlining anything, तो it means that is closed, ठीक है. Total equity and liabilities. अब we have equity section over here. Equity section means जो भी finance आपने invest किया है. कैपिटल एट स्टार्ट, आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था, ठीक है. एड नेट प्रॉफिट. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर यहाँ पे एड नेट प्रॉफिट है और मेरी इनकम स्टेटमेंट में लॉस आ गया, व्हाट आई विल डू? इसे लेस कर देंगे. यस, वेरी गुड, वेरी गुड उमर, गुड आंसर. अगर मेरी इनकम स्टेटमेंट में नेट लॉस आ रहा है, although it can happen in any scenario, net loss भी आ सकता है, जरूरी थोड़ी कि net profit ही हो. अच्छा, some of the students who solve the question वो doubtful हो जाते हैं, सर हमारा net loss आ रहा था, so we did not continue with the question. Don't do that. हो सकता है net loss आ रहा हो आपका, जरूरी नहीं है कि net profit ही हो, ठीक है. यहाँ ऐड हो जाएगा net profit हुआ. अब मैं आपको एक बार net loss भी करके दिखाता हूँ. सर हमारा net loss आ रहा था, net loss तो less हो जाएगा. लेस में क्या होगा? वी विल पुट ब्रैकेट्स और हम इसको माइनस करेंगे फ्रॉम दी कैपिटल फिगर. सही है, ये मैंने दोनों करके दिखा दिया आपको. सॉरी, इस बार एक काम करते हैं, नेट लॉस पे लेके चलते हैं, ठीक है. लेट्स अज्यूम वी हैव अ लॉस ओवर हियर. लेस ड्राइंग्स लेस कर दी, कितना अमाउंट है? XYZ अमाउंट विल बी गिवन एंड यू गॉट अ टोटल ओवर हियर इन दी थर्ड कॉलम, ठीक है. Then we have non-current liabilities.
जो कि लोन्स विच आर मोर देन 1 ईयर, बैंक लोन विच इज रीपेबल आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। आपको डेट बताएगा, डेट के अंदर यू कैन एस्टिमेट के वेदर इट इज अ लॉन्ग टर्म लोन और इट इज अ शॉर्ट टर्म लोन। करंट लायबिलिटीज के अंदर वी कैन ऑब्जर्व दैट वी हैव अकाउंट्स पेबल, ऑलवेज दिस फिगर इज देयर, और इसके अलावा भी कोई करंट लायबिलिटी हो सकती, ठीक है, बट सो फार इट इज द कॉमन लायबिलिटी विच विल कम इन योर आंसर्स, और हम इसको ऐड करेंगे सबको तो वी विल गेट अ फाइनल फिगर दैट इज ओवर हियर। अच्छा, दिस फिगर विच इज ओवर हियर एंड दिस फिगर दे बोथ शुड मैच। सर क्यों मैच होनी चाहिए? हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी अकाउंटिंग की बहुत पहले, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है, हमने काफी पहले ये इक्वेशन पढ़ी थी। इस इक्वेशन को लेट मी रिफ्रेज इट अगेन, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। समझ आई बात क्या हो रहा है यहाँ? डिड यू पीपल अंडरस्टैंड? यस और नो? नहीं सर। नो यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, ओके। अच्छा, ये जो बैलेंस शीट है ना, दैट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। देखिए, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स आपके आ गए। एसेट में तो दो ही एसेट्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। यू गॉट अ टोटल ओवर हियर इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। मैंने इस फॉर्मूला को रिप्लेस कर दिया, एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। इक्विटी कहें या कैपिटल कहें, बोथ आर द सेम टर्मिनोलॉजीज व्हिच आर यूज्ड टाइम एंड अगेन, इंटरचेंजेबली यूज हो रही होती है टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। So capital or equity can be used interchangeably. So equity plus liability will be equal assets, and capital plus liability will also equal assets. ये दोनों एक ही formula है सर। अब now we can compare over here. Equity के अंदर we have three items. Capital at start. This is here. The net profit or the net loss less drawings, which is the third item. We have this. Then we deduct it, so we will get a final total that is over here. The final answer will be over here. Then we have non-current liabilities, and these non-current liabilities okay. Non-current liabilities are over here. You can see ये non-current liabilities है। liabilities की दो ही वो है फॉर्म्स है, इट इज आइदर करंट और नॉन करंट, दोनों का ऐड किया लायबिलिटीज बन जाएंगी। वी विल ऐड इट इन इक्विटी। तो हमें ये प्रूव करना है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये कैपिटल और लायबिलिटीज ऐड हो रहे हैं इन दिस सेक्शन, एसेट्स आर ऑन द टॉप, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न, ठीक है। आशिर सी, I hope Ashir has reconnected. Shahir, you are very much right कि बुक के अंदर एसेट माइनस लायबिलिटी वाला है, डोंट यूज दैट। द फॉर्मेट विच यू आर डूइंग इन आवर क्लासेस, ये न्यू फॉर्मेट है, दैट विल बी यूज्ड इन CIs, और इसी को आपने फॉलो करना है, ठीक है। डोंट गो फॉर द बुक। और ट्रायल बैलेंस से कैसे करेंगे? आशिर इज आस्किंग। आशिर, द सेम फॉर्मूला इज देयर, ये सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ऑन ट्रायल बैलेंस के कैसे कैपिटल निकालेंगे। एसेट्स आर गिवन, मशीनरीज वैन्स वगैरह आपको एसेट्स गिवन होते हैं, कैपिटल आपको गिवन होता है, लायबिलिटीज गिवन होती है। इफ यू हैव टू कैलकुलेट कैपिटल, एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों गिवन है, इसको प्लस माइनस करेंगे मैथमेटिकली, देन यू विल गेट द फिगर ऑफ कैपिटल, ठीक है। आपके पास क्रेडिट साइड पे लायबिलिटीज होंगी, डेबिट साइड पे एसेट्स होंगे। यू डिडक्ट लायबिलिटीज फ्रॉम एसेट्स, यू डिडक्ट assets from liabilities, you will get a figure of capital on the credit side, ठीक है। that's the answer for trial balance. trial balance इसी फॉर्मूला के ऊपर ऑपरेट करता है, A is equal to L plus C, ठीक है। A is equal to L plus C का फॉर्मूला है, that is being used for trial balance. और एक और चीज which I wanted to give you in this class is, देखिए कभी आपके पास एक सेल्स जर्नल है कभी भी आपके पास, ठीक है सर। तो वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा जो बुक में है? कौन सा वाला?
ये एसेट्स का और कैपिटल और लायबिलिटी का देखिए वो एक ही चीज है. इफ आई एक्सप्लेन यू दैट इज द सेम थिंग. ठीक है, आप अच्छा उसको कोई चेंजिंग मैथमेटिक तो नहीं है ना? नहीं, आप उसको मैथमेटिकली इक्वेट कर दें. अब देखिए मैं इक्वेट करके दिखाता हूँ आपको, सो दैट यू कैन बी मोर क्लियरर ऑन दिस. एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल. क्या गलत है इसमें ये बताएं. ये इसको इससे कंपेयर करें, कुछ गलत है इसमें? सेम है भाई. सेम है ना. बट Same है sir. द रीजन इज दैट कि हमारा जो सिलेबस है ना, जो एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट हैज चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम. ठीक है, तो एग्जामिनर इज सेइंग कि जो मैंने अभी फॉर्मूला करवाया ना आपको, इस तरह से कैलकुलेट, यू हैव टू यूज दिस. ठीक है, तो आप न्यू वर्ड वाला न्यू ही यूज करेंगे. बट मैथमेटिकली इफ यू सी के दोनों एक ही चीज है, गलत आंसर नहीं हो सकता दोनों में. ठीक है सर. ठीक है. अच्छा, देयर इज अ जनरल लेजर इन फ्रंट ऑफ यू. एक एग्जांपल मैं आपको देना चाह रहा हूँ. 2019 का जनरल लेजर है. जनवरी 1 को सेल्स टू डेट. ठीक है, मे बी देयर माइट बी अ क्वेश्चन लाइक दिस, जिसमें आपके सेल्स टू डेट लिखा हुआ 1 जनवरी 5000. ठीक है, अब आपके पास जो सेल्स जर्नल के अंदर जो आपके पास सेल्स आई है टोटल ऑन 31 दिसंबर ऑफ 2019, वो आपके पास आई है 15,000. तो आप क्या लिखेंगे, इसके नीचे ही लिखेंगे ट्रांसफर टू, सॉरी, टोटल फॉर द मंथ, नॉट ट्रांसफर, टोटल फॉर द मंथ 15,000. सही है, समझ आया? मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ. 1 जनवरी को देयर माइट बी क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हो, ऐसे टी अकाउंट बना हो और उसमें लिखा हो 1 जनवरी सेल्स टू डेट. ठीक है, उसमें आपके पास अमाउंट ऑफ 5,000 जो कि ईयर के स्टार्ट पे आपके पास सेल्स अकाउंट के अंदर नजर आ रहा होगा. ठीक है, अब यू हैव कैलकुलेटेड द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री. आपने सेल्स जर्नल बनाया, यू गॉट अ टोटल ऑफ 15,000 इन द सेल्स जर्नल. तो सेल्स जर्नल बनाएंगे, उसके बाद सेल्स लेजर बनाएंगे इंडिविजुअल टी अकाउंट्स में. एट द एंड यू विल कम टू द सेल्स टी अकाउंट. तो सेल्स टी अकाउंट में जैसे पहले लिखते थे वैसे ही लिखेंगे 31 दिसंबर टोटल फॉर द मंथ ऑन द क्रेडिट साइड, द सेम अमाउंट व्हिच इज कैरीड फ्रॉम द सेल्स जर्नल. बस, दैट्स इट. That was something I wanted to tell you. मैं इसको रिकॉर्डिंग को भी अपलोड कर दूंगा, then you can see again and again before the paper. ठीक है, anything specific? I hope the queries have been answered. फोलियो समझ में नहीं आया. देखें शहीर, फोलियो इज फॉर कॉन्ट्रा एसेट. देखें फोलियो का कोई भी काम नहीं होता इन योर आंसर्स अदर देन राइटिंग कॉन्ट्रा एसेट्स. सॉरी, कॉन्ट्रा एसेट्स. I'm saying other than writing contra entries. Contra entries का मतलब है any entry which involves cash and bank both. ठीक है, कोई एक ऐसी एंट्री जो कि कैश बुक के अंदर है, जिसमें कैश भी है जिसमें बैंक भी है. So wherever there are both involved in that particular transaction, you will write C in folio. बस उनके सामने C लिखना है. That's the purpose of folio, not more than that. I hope I have explained, Umair. फोलियो का मतलब है यू राइट द कॉन्ट्रा एंट्री, एनी एंट्री विच इन्वॉल्व्स कैश एंड बैंक बोथ. जब आप कैश बुक बनाते हैं, कोई ऐसी एंट्री जिसमें कैश डेबिट हो रहा हो और बैंक क्रेडिट हो रहा हो, जब बैंक डेबिट हो रहा हो और कैश क्रेडिट हो रहा हो, यू राइट सी इन फोलियो. दैट इज अ कॉलम इन कैश बुक. आप उस कॉलम में सी लिखते हैं उस ट्रांजेक्शन के सामने. जब आप ट्रांजेक्शन पास करते हैं, ऑन द डेबिट साइड यू राइट सी, ऑन द क्रेडिट साइड यू राइट सी इन दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ. I would suggest you people practice earlier questions which I have given you. आप उसको जितना ज़्यादा कर सकते हैं, you can do that so that I can you can practice more. जी जी. अकाउंट का क्वेश्चन 2 का जो थ्योरी वाला पेपर है, हेलो, वो कितने मार्क्स का होता है? पेपर 1. नहीं ना, अकाउंट्स का जो वो है एमसीक्यू पेपर 2 है, थ्योरी और पेपर 1 एफटीपी is है. 35. पेपर 1 is 35 and दो paper, पेपर्स हैं. बस पेपर 1 is 35 and paper 2 is 100 marks. 5 questions, 20 marks each. Sir? every question. जी. तो थ्योरी और एटीपी अलग अलग होंगे? There is no MCQs ATP. है. There is no ATP in this. MCQs है. MCQs paper is there. सिर्फ बस P1 is MCQs and P2 is these type of questions. और P2 में टाइम कितना मिलता है? P2 में I think 1 hour 30 minutes or 45 minutes are allocated.
उसमें एक 100 मार्क्स का मिलने कैसे? 4 घंटे जाएंगे। सॉरी, सर 100 मार्क्स का पेपर है, 40 मिनट में कैसे कर सकते हैं? yeah, everyone is doing that, so obviously you have to do it. एक मिनट, let me confirm the timing. 1 hour 45 minutes is there. You can see this is paper 1 and 2. ठीक है, paper 1 1 hour 15 minutes 35 MCQs, 100 marks 1 hour 45 minutes. paper 2. ठीक है, I hope you are clear on this. Okay, let's end the class today. We are done with the revision. If there are further questions, then you're more than welcome to put the question on Google Classroom and on WhatsApp. I will reply as soon as I get free, and prepare yourself very well for the topics. Inshallah, I'm hoping a lot. I'm hoping the best from every student of my class. Allah Hafiz everyone.